I'm uploading this video for semester 2 and I'm starting chapter overhead for cost accounting. As as you know that at the when we were discussing the chapter cost sheet, you have already come to know that cost the analysis of cost and subdivision and classification of cost. While classifying cost, you have come to know that there are basically three elements of cost. One is material, other is labor, and other is expenses. Now material can be subdivided as direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, and direct expenses, indirect expenses. Yes, you have, it is already known to you that while classifying cost as per its elements, you have come to know that material are there are two types of material. One is direct material, indirect material. Labor were of two types: direct labor, indirect labor, and expenses were of two types: direct expenses, indirect expenses. If you add direct material, direct labor, and direct expenses, you get prime cost. And if you add indirect material, indirect labor, and indirect expenses, you get overhead. If you add indirect material, indirect labor, and indirect expenses, you will get overhead. Now, in that particular chapter, we are trying to have a specific knowledge on overhead. And therefore, what is overhead? Overhead is basically sum total of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. And overhead can be classified from various dimensions. Overhead can be classified as per its nature or behavior. In that way, overhead are of three types: direct, fixed overhead, variable overhead, and semi-variable overhead. Overhead can be classified from its functional basis also. We are not right now. We are not concentrating on that particular domain. What we will do, we will come to know the university questions. That means which area of overhead is covered or is important for Calcutta University become exams. Basically, two types of problems are there. One is apportionment of overhead, and other is overhead recovery rate. These two types of problem are basically in the question papers of Calcutta University. ओवरहेड तले काके बोले ओवरहेड क्या है? ओवरहेड है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम टोटल. और उस ओवरहेड कैसे हम लोग उसका ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है. तो पहले जो सवाल हम लोग कर रहे हैं, जो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड apportionment of overhead. ओवरहेड को कैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवीजन किया जाए, इसका मतलब क्या है? मानो एक्टा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, रेंट, फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा पेड हुआ है. अब ये जो सब खर्च हुआ है, ये सब खर्च अगर फैक्ट्री में 3-4 डिपार्टमेंट है तो उनमें बंटवारा करना पड़ेगा. मानो आपने एक घर रेंट पे लेके रह रहे हो और आपके साथ कौन कौन है? आप 3 भाई लोग हैं. you are three brothers are there and you are living in a rented house. ना वो जो रेंट है, जो रेंट आप लोग पे कर रहे हो, दैट रेंट
हैज टू बी पेड बाय यू एंड योर ब्रदर्स। तीनों मिलकर रेंट पे करोगे। अब किसके हिस्से में कितना रेंट आएगा? वैसे ही एक फैक्ट्री बहुत सारा ओवरहेड पे कर सकता है। ओवरहेड क्या 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 हो सकता है? जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, ऑल आर फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल आर ओवरहेड्स। अब if there are 4 departments in that factory, then all those expenses, all those overheads are actually accruing, are actually incurring for all the 4 departments। चारों के चार डिपार्टमेंट को रन कराने के लिए, चारों के चार डिपार्टमेंट के लिए ही तो वो सारा खर्च हुआ है। तो आपको क्या करना है? वो सारा एक्सपेंसेस को 4 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपोर्शन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कौन डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट अराइज कर रहा है। क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग द डिपार्टमेंटल profitability, departmental productivity, that is why I am concerned about departmental cost। तो कौन डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड एक्रू हो रहा है, कौन डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड इनकर कर रहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का सवाल हम लोग फेस करते हैं। उसे अप्रोप्रिएशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहते हैं हम लोग। बेसिकली एक फैक्ट्री में 2 तरीका का डिपार्टमेंट्स होता है। एक डिपार्टमेंट को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, और एक डिपार्टमेंट को, एक तरीका का डिपार्टमेंट को, वन टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। कैसा, व्हाट इज दैट? मानो बाटा कंपनी में बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स है वेयर बेसिकली कंपनी इज प्रोड्यूसिंग समथिंग। जैसे कि एक है आपका रबर सेक्शन, रबर डिपार्टमेंट। उस रबर डिपार्टमेंट में रबर शू प्रस्तुत किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि जो पावर है, जो भी स्पोर्ट्स शूज़ बनता है, जो हवाई सैंडल बनता है, या जो आपका क्या कहते हैं वो बारिश के समय रेनी सीजन में जो जूता पहनते, वैसा जूता प्लास्टिक का, ऐसा रबर का जूता, ये सब उस डिपार्टमेंट में बनाया जाता है। और एक लेदर फैक्ट्री होता है। लेदर फैक्ट्री में क्या बनता है? लेदर का शूज़, हास पापीज, एम्बासाडर, आपका मोकासिनो, जो भी शू है लेदर का, वो लेदर फैक्ट्री में, या चप्पल जो भी है लेदर का, वो लेदर फैक्ट्री में बनता है। तो बेसिकली बाटा कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बिसाइड्स दैट, ये छोड़ के और भी डिपार्टमेंट्स होता है जैसे कि हॉस्पिटल होता है, जैसे कि कैंटीन डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जनरेटर डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आपका अकाउंट्स डिवीजन हो सकता है। ये जो सब डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पर कोई जूता मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ये डिपार्टमेंट्स क्या करता है? वो जो जूता मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, जो रबर डिपार्टमेंट एंड लेदर डिपार्टमेंट था, उन लोगों को सर्विस देता है। जैसे कि कैंटीन में रबर डिपार्टमेंट का वर्कर आके भी खाता है, और वर्कर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो टेक फूड फ्रॉम दैट कैंटीन डिपार्टमेंट। अगर कोई हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, वो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, दोनों के दोनों वर्कर्स बिलोंग्स टू प्रोडक्शन leather factory as well as rubber factory. Both workers are being entertained in hospital. Therefore, those departments are not producing anything. They are providing service to the production departments. Therefore, in a factory, there are basically 2 types of department. One is called production department and other is called service department. Production department producing the goods, and service departments are providing services to the production department. सर्विस डिपार्टमेंट क्यों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है? क्योंकि अदरवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट रन। अब हम लोग नया 2 टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? मानो यू आर कंसर्न्ड अबाउट कंप्यूटिंग डिपार्टमेंटल कॉस्ट। आपका ऑर्गेनाइजेशन में जितना सारा डिपार्टमेंट्स है, पहले आप क्या जानना चाहोगे? पहले आप जानना चाहोगे कौन डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं। मानो
मानो मैं एक आदमी हूँ, मेरा इन माय सर्विस लाइफ जब हम नौकरी करते थे तब जो पैसा कमाया है उससे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है। बिल्डिंग में 4 ফ্লোরস है, 4 তলা বাড়ি বানিয়েছি। 4টে তলায় বাড়িতে এক একটা ফ্লোর আমি এক একটা, আমার 4টে ছেলে আছে, 4টে ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি। এবার মানো আই হ্যাভ এ ডটার, আমার একটা মেয়ে আছে, আর আজকে আমি ঠিক করলাম কি আমি মেয়েটার বিয়ে দেব। তো আমি হিসাব করে দেখলাম মেয়েটার বিয়ে দিতে গেলে আমার খরচা আছে 40 lakhs। তো আমি আমার ছেলেদের ডাকলাম, 4টে ছেলেকে ডেকে বললাম দেখো ভাই তোমাদের বোনের বিয়ে আছে, 4 লাখ টাকা 40 লাখ টাকা মোট লাগবে। আমার যা পয়সা ছিল সব দিয়ে আমি এই প্যালেসের মতো বাড়ি বানিয়ে ফেলেছি, আমার আর পয়সা নেই। ইউ আর রেসপন্সিবল, তোমরা আমাকে টাকা দাও, 40 lakhs টাকা তোমরা দাও। তো 4 ভাই বলে ঠিক আছে আমরা দেখছি, বলে 4 ভাই মিলে একটা মিটিংয়ে বসলো। সেই মিটিংয়ে কি ফিক্স হলো না 4 ভাই 10 লাখ 10 লাখ 10 লাখ 10 লাখ করে মোট 40 lakhsকে ভাগ করে নিল। তার মানে দিস ইজ কল্ড প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন। প্রাইমারিলি 4টে ভাইয়ের ওপর মোট এক্সপেন্সেস ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেল, এখানে ইকুয়ালি হলো। এখন ছোট ভাই যে ছিল সে কলেজে পড়ে, সে বললো আমার কাছে 10 লাখ টাকা নেই, আমি কোত্থেকে দেবো? তখন অন্য ভাইরা বললো ঠিক আছে ও তো দিতে পারবে না, ঠিক আছে ছোট ভাই যে 10 লাখ টাকা হয় সেই 10 লাখ টাকা বাকি 3টে ভাই মিলে ভাগ করে নিল। এই যে ছোট ভাইয়ের 10 লাখ টাকা जो खर्च जो यंगर ब्रदर को उठाना चाहिए था, ही इज अनेबल टू पे इट। देयरफॉर other 3 brothers, the elder 3 brothers are agreed to bear the expenses of the younger brother। ইয়াঙ্গার ব্রাদারের যে খরচ সেটা 3 ভাই ভাগ করে নিল, 3,33,333 করে 3 জনে আরও এক্সট্রা দিয়ে দিল। তার মানে অ্যাকচুয়ালি ডিভিশনটা কীভাবে হলো, ছোট ভাই কিছুই দিল না, রাদার ছোট ভাইয়ের যে 10 লাখ টাকাটা বড় 3টে ভাই কী করলো, তাদের 10 লাখ 10 লাখ 10 লাখ তো দিলই, প্লাস ছোট ভাইয়ের 10 লাখ টাকাটাও ওরা 3 জনে ইকুয়ালি স্প্রেড করে দিল। এই যে ছোট ভাইয়ের খরচাটা আমরা বড় 3টে ভাইয়ের ওপর স্প্রেড করলাম, একেবারে সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন। নাও হাউ ইউ ক্যান কানেক্ট ইট উইথ আ ফ্যাক্টরি। মানে কি হয়, ধরো বাটা কোম্পানিতে 4টে ডিপার্টমেন্ট আছে ধরে নিচ্ছি আমি, 2টো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, একটা লেদার ডিপার্টমেন্ট, একটা রাবার ডিপার্টমেন্ট, এই 2টো প্রোডাকশন হয় এখানে, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, অ্যান্ড দেয়ার আর 2 সার্ভিস ডিপার্টমেন্টস, one is canteen, another is hospital। अब मानो মোট রেন্ট, ফ্যাক্টরির মোট রেন্ট অ্যারাইজ করেছে, ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যারাইজ করছে ধরো 1 লাখ টাকা। এই 1 লাখ টাকা 4টে ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ 2টো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আর 2টো সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এদের সবার মধ্যে স্প্রেড হবে। কারণ ফ্যাক্টরির যে এরিয়া সেই এরিয়ার একটা পার্ট তো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট 2টো যেমন অকুপাই করে রেখেছে, সেরকমভাবে আদার পার্ট মানে হসপিটাল ডিপার্টমেন্ট বা ক্যান্টিন ডিপার্টমেন্ট এরাও তো ফ্যাক্টরির একটা পার্ট অকুপাই করে আছে, তাহলে এদের উপরে তো রেন্ট চার্জ করতে হবে। তাহলে আমরা কি করব, মোট 1 লাখ রেন্টটাকে 4টে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ওরা যা ফ্লোর এরিয়া অকুপাই করে আছে সেই বেসিসে স্প্রেড করে দেব 4টে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে। এই যে রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের ওপর তার রেসপেক্টিভ কস্টকে প্রাইমারিলি চার্জ করা হচ্ছে, একে বলা হয় প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন। বাট হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন? এখন দেখো बाटा कंपनीर सोर्स ऑफ इनकम की सेल ऑफ शूज, जूतों बेच के तो उसका मुनाफा होता है, उसका इनकम होता है। वो थोड़ी हॉस्पिटल सर्विस बाहर वाला लोगों को देता है, वो थोड़ी उनका कैंटीन का खाना बाहर वालों को बेचता है, वो तो वर्कर लोग ही खाता है। हॉस्पिटल से सर्विस तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर लोग ही लेता है। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट्स जो है उनका जो भी एक्सपेंसेस अराइज कर रहा है वो एक्सपेंसेस एंजॉय बाहर वाला लोग नहीं कर रहा है। यानी कि कंपनी बाटा कंपनी का कैंटीन का खाबार बाहर बेच के पैसा रेज नहीं कर पा रहा है।
या उस हॉस्पिटल में बाहर वालों का ट्रीटमेंट करके पैसा नहीं कमा पाएगा। यानी कि कैंटीन डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा, इस खर्च को रिकवर कैसे करेगा, कंपनी इस खर्च को उठाएगा कैसे? कंपनी एक खर्च के तुलवे की करे, अरे जूता बेच के उठाएगा। कंपनी हैज टू सेल इट्स शूज फॉर रेजिंग दोज एक्सपेंसेस, फॉर रिकवरिंग दोज एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, कैंटीन डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का जो भी खर्च होगा, वो खर्च को सेकेंड टाइम आपको घुमा के फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने चार्ज करना है। अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट का खर्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज नहीं कर पाओगे तो उस पैसा का रिकवरी नहीं होगा। आप आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही यू कैन रिकवर योर एक्सपेंसेस। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो भी खर्च हो रहा है वो खर्च किस कारण हो रहा है, वो उस खर्च हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कारण वो खर्च हुआ है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्च हो रहा है वो खर्च घुमा के हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर चार्ज करेंगे। अगर चार्ज नहीं कर पाएगा तो वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा रिकवरी करने का और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का पहले जो भी खर्च होगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में स्प्रेड कर देंगे, उसे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फिर क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्च होगा वो खर्च को फिर घुमा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना है, इसे हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर एक सवाल लिया गया मास्टर वॉल्यूम 1, बाद में हम व्हाट्सएप में भी, पहले ये व्हाट्सएप में भेज देंगे हम, उसके बाद सवाल देखना, वीडियो उसके बाद देखना। क्या है सवाल, द मॉडर्न कंपनी डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी है, उसका 4 डिपार्टमेंट्स है, ए बी डी एंड सी आर, oh my god, sorry, 4 ডিপার্টমেন্টস এ বি সি ডি লেখা একটু ভুল আছে। यहाँ पर ऐसा होगा, ए 4 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड डी आर production departments, A, B and D are production departments, sorry, A full stop, A, B and C, A, B and C are production department, A, B and C are production departments, and D is a service department. And D is a service department. A, B and C are production departments and D is a service department. The actual cost for the period, उस साल में आपका एक्चुअल खर्च क्या हुआ था ये सब बोल दिया है। उस साल में एक्चुअल खर्च, रेंट कितना हुआ, रिपेयर्स और प्लांट, डेप्रिसिएशन, ये ऑल आर ओवरहेड्स। आप एक बार कॉस्ट शीट चैप्टर देख लेना। ओवरहेड्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सब आपका ओवरहेड्स दे दिया है। आपको क्या करना है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। चारों डिपार्टमेंट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, जैसे कि कौन डिपार्टमेंट का एरिया ऑक्यूपाइड क्या है, कौन डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉयज़ है, कौन डिपार्टमेंट में जो माने डिपार्टमेंट्स हैविंग मशीन्स एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। ये हॉर्स पावर ऑफ मशीन क्या करता है, मशीन का कार्य करने का क्षमता, दिस इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो हॉर्स पावर क्या करता है, ये मशीन का कैपेसिटी या मशीन का काम करने का क्षमता प्रकाश करता है। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे दिया है। टोटल डायरेक्ट वेजेस दे दिया है। डायरेक्ट वेजेस, लेकिन याद रखना डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं है, ये तो प्राइम कॉस्ट में जाता है, ओवरहेड नहीं है। और इधर वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, लाइट पॉइंट्स दिया है। आपको करना क्या है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स बाय मोस्ट इक्विटेबल मेथड। मतलब ये जो खर्च आपको दे दिया था,
ये जो ओवरहेड खर्च आपको दे दिया था, ये इसको 4 डिपार्टमेंट में बंटवारा करना है। ये जो पहला सवाल है इसमें सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करने के लिए ही बोला है, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इस सवाल में नहीं है। इस सवाल में ये बोला है कि ये जो सारा ओवरहेड्स कॉस्ट हुआ था, इस ओवरहेड कॉस्ट देखो, रेंट 10,000 दिया है, यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है, थोड़ी आपको बोला है कौन डिपार्टमेंट में कितना रेंट होगा। आपको क्या करना है, ये जो रेंट है 10,000, इस रेंट को 4 डिपार्टमेंट में बंटवारा करना है। आप कैसे बंटवारा करेंगे, देखो इसका एक बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट होता है, यानी कि बंटवारा करने का एक तरीका होता है। बंटवारा करने का एक बांग्लाয় बोले बेसिस माने भित्ति, भाग करार एक भित्ति আছে। व्हाट इज दैट बेसिस, आप सोच के देखो, रेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। जो डिपार्टमेंट ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखेगा उसके ऊपर ज़्यादा रेंट चार्ज करोगे। मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि आप 3 भाई हैं, आप 3 भाई एक बहुत बड़ा घर भाड़ा पे लिए हो। अब मानो भाड़ा देना पड़ता है महीने में 1 लाख रुपीज़। आप तीनों भाई क्या इक्वली भाड़ा को उठाओगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मानो जो बड़ा भाई है वो 5 घर लेके बैठा हुआ है, जो छोटा भाई है, जो नेक्स्ट भाई है, वो 3 घर लेके बैठा हुआ है, and younger brother is occupying two rooms. Therefore, the entire rent of 1 lakh should have been apportioned among those 3 brothers in the occupation ratio, in the occupancy ratio, in as per their area occupied. अगर बड़ा भाई 5 घर लेके बैठा हुआ है तो उसको माने, और एक भाई 3 और एक भाई 2 घर ऐसे लेके बैठा हुआ है, तो टोटल एक्सपेंसेस शुड हैव बीन अपोर्शन्ड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ रूम, देयरफॉर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयरफॉर ये जो रेंट है ये डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बंटवारा करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में। देखो यहाँ पर दे दिया है एरिया इन स्क्वायर फीट, कौन डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है उसकी बेसिस में बंटवारा करेंगे। नेक्स्ट था आपका रिपेयर्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है रिपेयर्स ऑफ प्लांट, ये किस बेसिस में हम लोग डिवाइड करेंगे, बोलो सोचो। यस, इट विल बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, यानी कि जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्लांट है, जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा मशीन है, उस डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग का कॉस्ट ज़्यादा होगा, यही सोचेंगे हम लोग। तो वी विल यस वेट, वैल्यू ऑफ प्लांट इज गिवन हियर, वैल्यू ऑफ प्लांट इज गिवन हियर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्लांट रेशियो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट एक्सपेंसेस। देन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन प्लांट एक ही होगा, वही जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्लांट है हम लोग सोचेंगे उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा ये होगा, ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, तो ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट रेशियो में डिवीजन करेंगे। सुपरविजन, यानी कि जो सुपरवाइजर लोग हैं वो लोग कौन डिपार्टमेंट में ज़्यादा समय दे रहा है, हम लोग कहते हैं कि वी विल अपोर्शन सुपरविजन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड, কি টাইম ডিভোট করেছে সুপারভাইজাররা কোন ডিপার্টমেন্টে, তার বেসিসে আমরা ভাগ করব। অঙ্কের টাইম ডিভোটেড এখানে কিছু দেওয়া নেই, যদি দেওয়া না থাকে তাহলে দুটো, देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स, वन इज एरिया ऑक्यूपाइड। हम लोग पकड़ सकते हैं जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा एरिया लेके बैठा हुआ है जो डिपार्टमेंट, वहाँ पर सुपरवाइज़र को ज़्यादा समय लगा, या नहीं तो आप वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस में कर सकते हो कि जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्लांट है हम लोग पकड़ेंगे सुपरवाइज़र को, वहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन मेरा मैंने व्हाट आई थिंक, अगर आपका सवाल में डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा तो डायरेक्ट वेजेस रेशियो इसको बंटवारा करो। क्यों? क्योंकि हम लोग पकड़ेंगे जो डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा है उस डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र को ज़्यादा समय देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा वर्कर है, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा है। तो सुपरवाइज़र को उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा समय देना पड़ रहा है जहाँ पर डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट वेजेस रेशियो में सुपरविजन को भाग करेंगे। फायर इंश्योरेंस, अब किस चीज़ का इंश्योरेंस किया हो ये तो देखना पड़ेगा। अगर आप प्लांट का इंश्योरेंस किए हो तो वैल्यू ऑफ प्लांट रेशियो में भाग होगा। अगर आप स्टॉक का इंश्योरेंस किए हो, तुम्हारा गोडाउन में जो स्टॉक है
उसका इंश्योरेंस कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक रेशियो होगा। यहाँ पर शायद शायद यस वैल्यू ऑफ स्टॉक दे दिया है, तो हम लोग पकड़ेंगे कि ये स्टॉक का इंश्योरेंस है, तो हम लोग फायर इंश्योरेंस को स्टॉक का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 डिपार्टमेंट का अलग अलग, उस वैल्यू ऑफ स्टॉक रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर है पावर। पावर मतलब कौन मशीन कौन डिपार्टमेंट ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। जो डिपार्टमेंट ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वहाँ पर ज़्यादा पावर कॉस्ट जाएगा। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे दिया है, हम लोग पकड़ेंगे जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा हॉर्स पावर का मशीन चल रहा है वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट अराइज कर रहा है। लेकिन कोई कोई बोलता है, वो हमें लगता है कि वो सही है, हॉर्स पावर ऑफ सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन को कंसीडर नहीं किया जाता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन एंड वर्किंग आवर्स को भी कंसीडर किया जाता है। एक कॉम्पोजिट रेशियो निकाल लिया जाता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन को टाइम वर्किंग आवर्स से गुण करके एक रेशियो निकाला जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, मानो इस डिपार्टमेंट का सी डिपार्टमेंट का हॉर्स पावर सबसे कम है मशीन का, लेकिन इस डिपार्टमेंट में काम सबसे ज़्यादा हुआ है, इसका मशीन सबसे ज़्यादा चला है, तो इसमें तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो जाएगा। इसीलिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन को वर्किंग आवर्स कौन मशीन का ज़्यादा है उसको भी कंसिडर करके, मतलब हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू वर्किंग आवर्स गुण करके जो वैल्यू होगा उस रेशियो में इसको स्प्रेड करना उचित है। लेकिन शायद इस सवाल में सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन में ही हमने कर दिया है, बाद में देखते हैं, हम याद नहीं है हमको। फिर लाइट मतलब जो लाइट जल रहा है, पंखा चलता है, ये सब, तो ये जनरली होता है लाइट पॉइंट्स के ऊपर। जो डिपार्टमेंट ज़्यादा लाइट पॉइंट यूज़ कर रहा है उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्च होना चाहिए, लाइट पॉइंट रेशियो में इसका डिवीजन होना चाहिए। अगर सवाल में लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट लाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। जो डिपार्टमेंट ने ज़्यादा एरिया लेके बैठा हुआ है हम लोग पकड़ेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग खर्च हो रहा है, तो ये लाइटिंग को डिवीजन करेंगे। आइदर इट विल बी distributed as per light point ratio. If light point ratio is not given, then we will distribute it in the ratio of area occupied, floor area occupied. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर लाइट पॉइंट्स दे दिया था तो लाइट पॉइंट रेशियो में ही करेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस। एम्प्लॉय लोगों का लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम कंपनी दे दिया है, तो ये चार्ज होना चाहिए जरूर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। सवाल में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रेशियो में इसको बंटवारा करेंगे। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं देगा तो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में स्प्रेड करेंगे। क्यों, क्योंकि पकड़ेंगे जो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा हो रहा है उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्कर काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंश्योरेंस वर्कर की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा जा रहा है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट that type of a statement has to be prepared, distribution of overhead। यहाँ पर expenses नाम का एक कॉलम है, then basis of apportionment। basis of apportionment मतलब ये जो expenses है इसको 4 डिपार्टमेंट में हमको स्प्रेड करना है, किन बेसिस में करेंगे, जो बेसिस हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसको यहाँ पर रेफर करना पड़ता है। फिर एक टोटल का घर है मोट खर्च लिखेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है ABC, और एक सर्विस डिपार्टमेंट D है, अब लिख दिया। पहला एक्सपेंसेस क्या था, रेंट क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड और फ्लोर एरिया, इसके बेसिस पे भाग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर फ्लोर एरिया दे दिया था आपका 1500 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट एंड 500 स्क्वायर फीट। उस रेशियो में हम लोगों ने क्या किया, 10,000 टोटल कॉस्ट को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर रिपेयर्स ऑफ प्लांट था, अभी बोला है वैल्यू ऑफ प्लांट रेशियो में करेंगे उसको। वैल्यू ऑफ प्लांट जो दिया था उसका लिख लिया राफ कागज में, इसका छोटे रेशियो को छोटा कर लेना, जो रेशियो आएगा उससे 6,000 टोटल कॉस्ट था उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया। फिर वैल्यू आपका डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, वो भी वैल्यू ऑफ प्लांट ऊपर वाला रेशियो में करेंगे। मोट 4,500 था, इसका इस रेशियो को छोटा करके जो रेशियो आएगा उस रेशियो में स्प्रेड कर देना है। फिर सुपरविजन कॉस्ट था, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर डायरेक्ट वेजेस है तो उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में सुपरविजन को चार्ज करेंगे, और नहीं तो एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर करेंगे। इस सवाल में डायरेक्ट वेजेस दे दिया था, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो ऐसे निकाल लिया, फिर उसको यहाँ पर उतार दिया। इस टोटल कॉस्ट था मेरा 15,000, उसको इस रेशियो में बंटवारा करके यहाँ पर लिख दिया। फिर था आपका इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक
और बिल्डिंग और वैल्यू इंश्योरेंस ये स्टॉक के ऊपर हो सकता है या बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है। ये अगर स्टॉक व बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दिया है तो फ्लोर एरिया की बेसिस में कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक दे दिया है तो हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक टोटल फिगर लिख दिया और उसका स्टॉक का वैल्यू जो था उस रेशियो में 3 डिपार्टमेंट ने भाग कर दिया। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई स्टॉक नहीं था इसीलिए वहाँ पर इंश्योरेंस का कोई कॉम्पोनेंट नहीं गया। पावर यहाँ पर सीधे सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स जो था उसकी रेशियो किया गया। टोटल कॉस्ट 9000 को 8:5:2 रेशियो में यहाँ पर स्प्लिट कर दिया गया। फिर था लाइट पॉइंट्स नहीं, ये होगा आपका लाइटिंग किसकी रेशियो में होता है? लाइट पॉइंट्स, और अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो फ्लोर एरिया में। यहाँ पर लाइट पॉइंट्स दे दिया था, लाइट पॉइंट जो रेशियो है 4:3:2:1 उस रेशियो में 1000 को स्प्रेड कर दिया गया। एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल कॉस्ट था 1500, उसको इसको छोटा भी कर सकते हो ऐसे 20, इसको सब 5 से भाग कर दो तो 4:3:2:3 2:3 इस रेशियो में। मतलब ये क्या होगा? ये होगा आपका 1500 था टोटल, उसको आप क्या करोगे 4 3 7 2 9 और 3 12 3 3 6 4 10 2 12 यस, ये 4/12 करोगे। इसको करोगे वही 1500 टोटल कॉस्ट इंटू 3/12, यहाँ पर 2/12 और यहाँ पर फिर 3/12 हो गया। फिर एक नया बात आपको सीखना है। देखो मैंने क्या बोला था अभी, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल अगर रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो ओवरहेड नहीं है, वो तो प्राइम कॉस्ट कंपोनेंट है, तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस जो था मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली चार्जेबल इनटू सर्विस डिपार्टमेंट बोल के सर्विस डिपार्टमेंट ने घर में सिर्फ लिखा, बाकी घर में नहीं लिखा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सोच के देखो सर्विस डिपार्टमेंट का जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल होता है वो तो इनडायरेक्ट इन नेचर है। একটা জুতো কারখানায় লেদার কিনেছো, রাবার কিনেছো, দিস অল আর ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল অ্যান্ড ইউ আর পেইং ওয়েজেস ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অর প্রোডাকশন অফ শুজ, দিস আর ডাইরেক্ট ওয়েজেস। বাট ক্যান্টিনে যে ওয়ার্কারটা রান্না করছে তাকেও আমরা ওয়েজেস দিচ্ছি, সেটা ডাইরেক্ট ওয়েজেস, কিন্তু दैट डायरेक्ट वेजेस इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट वेजेस क्योंकि वो तो जूता नहीं बना रहा है, कैंटीन में जो रान्ना करছে সে কি whether he is making shoes। Therefore direct wages or direct material incurring in service department is actually treated as indirect material or indirect wages and it will be a component of overhead। इसीलिए अगर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में का दिया रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट में दिया हुआ है तो उसको जरूर कंसीडर करेंगे। किया है, सबको लास्ट में जोक कर दिया, जोक करके जो आया वही आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर खत्म हो जाता है। ये जो बात हुआ छिड़ा था डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल वाला, उसका नोट में शायद यहाँ पर लिख दिया है मैंने, पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। ये मास्टर वॉल्यूम 1 हो गया। इसके बाद मास्टर वॉल्यूम 2 करेंगे, इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ विल बी सोन। ये दूसरा वीडियो में दिखाते हैं।